Hello dear friends, today we will discuss how to make the trend analysis of environment monitoring. You can make the trend analysis of environment monitoring whatever you want to do. Okay, so Excel में हम बनाते हैं trend analysis. We use Excel, Microsoft Excel for trend analysis. Just like I am showing you one example. You can write at the top your company name, then trend analysis for plate exposure, suppose in manufacturing area. Then there will be different columns, just like date, first column, then alert limit you can write in second column. In third column you write, in this third column you write the action limit. In fourth column you may write location 1, whatever, suppose it is production area, manufacturing area. It is second next column, location 2, it is the, suppose it is filling area, or different areas, location 1 2 3 4 5 6, different location you can write that down. Just like this is location 3, then 4, then 5, then 6, right? In the date column, in the column number 1, first of all you will do what? Write the date of all the month, right? Just like 1, 2, 3, 3rd May, 4th May 25 up to last of the month. Then write the alert limit. Suppose we are making the trend of grade D area, then alert limit, you may define the alert limit and action limit on the basis of initial validations. Then you may write these alert limit in second column, suppose 50, action limit that is 100, or whatever your action limit is coming, and write down the daily counts which are observed, okay, here in the cell, in these cells, right? Just like this you have mentioned all the result here. Then you can write average at the last, this row, of all 31 days of May, just like example we have discussed, minimum and maximum results, right? Also alert action you can calculate. On the basis of these results you can draw the graph. This graph you can draw easily. Okay, I will totally describe you how to make this whole graph and how to make the trend analysis. तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे हमें टेबल बनाना है पहले, और टेबल बनाने के बाद कैसे एवरेज कैलकुलेट करना है, मिनिमम मैक्सिमम कैसे, तो और लास्ट में ग्राफ कैसे बनाना है. तो ये हम पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. ओके, तो हम फ्रेश एक टेबल बनाएंगे. वी विल स्टार्ट टू मेक अ फ्रेश टेबल. तो व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर दैट just select the cell. Suppose you need these columns, okay, then there is a home, in the home tab there is merge and center cell. Click here, merge and center. So this will merge. You can write down the company name here. Okay, type company name, company name, right? You can type like this, company name first of all, right? Then what can you do? In the second column further you can merge. कैसे मर्ज करना है? सेलेक्ट कर लीजिए जितना भी था, जितने भी सेल आपको सेलेक्ट करने हैं. यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, राइट? और सेलेक्ट करने के बाद में, अभी जूम आउट कर देता हूँ मैं, जूम इन किया था मैंने, ये सेलेक्ट किया. सेलेक्ट करने के बाद में होम टैब में जाकर के क्या बताया था लास्ट मैंने? मर्ज एंड सेंटर. आई टोल्ड यू अर्लियर दैट व्हाट वी विल गो टू द होम टैब, देन क्लिक ऑन द मर्ज एंड सेंटर टैब. क्लिक हियर एंड राइट डाउन हियर व्हाट? ट्रेंड एनालिसिस, TREND,
trend analysis of, suppose you are doing trend analysis of plate exposure. Zoom in, we can do trend analysis of plate exposure. Trend analysis of plate exposure. Also, what you can do bold, select, and here this B, click on this B. I need to zoom out first of all, then I can show you. This is bold, right? Cursor is there, bold. It will become bold now, right? Now in the first column, what will you write? Also you can select the border, select these, and here it is border cell. You can select this border, all border, then it will be like this. Then here in the first column you are going to write the date, DATE, date. Then I told you what you need to write, alert limit, ALERT, alert, LIMIT, alert limit. Then you write action limit, okay. Then count of the area you should write, location 1. Then suppose there is location 2. Then location 3. Then location 4. Then location 5. Right? All location you have written. Then in the date column, this column, right? In this date column, we will write all the dates of the month. Suppose we are making the trend of May month, right? So you can write 1st May, 1st 5/25, 2/5/25, 3/5/25. Just like you can write down the dates. एक्सेल में एक बेटर वे रहता है कि आपने कुछ जैसे 3 डेट्स यहाँ पर लिख लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये डेट्स आपने राइट अप कर लिया है, तो यहाँ पर 2 प्लस साइंस आर शोन, दिस वन लार्ज प्लस साइन and this is the small plus sign. Just drag this small plus to down, so it will change automatically the dates. At present it is not changing. You can write this just like 4/5/25, 5/5/25. Now drag down. Actually it is not converting, as we have already note down the dates. We can also copy from there all the dates, just like you can write down individual dates, or you can do the copy, just like these dates. Copy these all dates, then copy minimum, maximum, average, go there and paste. You know, paste, Control V. Just this all pasted, all the dates. Now we have, now alert limit. Suppose our alert limit is 50 CFU per 4 hour and 100 CFU per 4 hour of plate exposure is the action limit. Okay, you can select these and paste in the lower area, all the area. Control V.
just like this. Select Control C, then in all this area do the Control V. Okay, you can do center also. How you can do center? For doing the center alignment, you select, first of all you select the table. We will do same in all the table, just like here. Suppose this is our table, then select all the table, then here this is the center tab. You can see this center tab, click here, it all will become in center. Now this border, you can select all borders, this one, then there will be all borders. Okay, you can, if you want to make bold, then you can also do bold of the upper heading, right? Now it is bold. Now you have to do, you have to write all the dates data. Suppose location 1 was the manufacturing area. You are on first date, you were getting count 25, then on next day you are getting count 36, then next day 14, then 15, then 12, then 18, then 14, then 25, then 39, just like these counts you were getting. Okay, फिर जस्ट हमें तो अभी एक जनरल बेसिक डिस्कस करना है. मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं. कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, राइट. लोअर डेटा इरेज कर देते हैं. ये होल जो है हमारा, इसी को ही मैं सभी में फिलहाल I am just pasting this all the data here also, here also, here also, and here also, just like this. Okay, in some places you can change the count, just like here I have done 36, then 44, then it suppose 8, है ना. थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन कर लेते हैं. तो ये हमने क्या किया है, पूरे मंथ का डेटा का काउंट्स यहाँ पर राइट अप कर लिया है. अब इससे आगे का वर्कआउट कैसे करना है वो हम देखेंगे. 41, 36, 39, 14, जस्ट लाइक दिस. तो ऑल डेटा काउंट वी हैव रिटन नाउ. व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले फॉर्मूला, एक्सेल में अगर हमें फॉर्मूला लगाना होता है तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू click the and first of all equal to tab, equal, enter equal, right. First equal to sign, then write down average, 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 then bracket, small letter or capital letter कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then select hold this कॉलम ना, अलर्ट लिमिट कॉलम पूरा सेलेक्ट कर दीजिए आप. अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए. ओके, शिफ्ट दबा करके ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कर दीजिए. तो ये एवरेज निकल चुका है. 50 का एवरेज तो 50 आने वाला है, राइट. जब हमने एवरेज निकाल लिया, अब एवरेज के बाद हमें क्या करना है, देखिए स्मॉल, जैसे मैंने बताया था, ये जो स्मॉल प्लस साइन आता है इसको पकड़ेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे लेफ्ट टू राइट. ऐसे बढ़ाएंगे ना तो ऑटोमेटिक सारे में फॉर्मूला लग जाने वाला है. ये यहां तक सबका एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, तो सबका एवरेज आ चुका है. अभी हमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स में नहीं लेना है. माइक्रोबायोलॉजिकली वी आर नॉट टेकिंग इन पॉइंट्स. तो ये आप देख रहे हैं टॉप पर, हियर डिक्रीज डेसिमल, तो डेसिमल हटा दीजिए, ठीक है, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं. तो ये हमारा एवरेज आ गया है. अब राइट,
एक्चुअल में एवरेज इधर तो आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, आप एन ए भी राइट कर सकते हैं, एन ए नॉट एप्लीकेबल, एन ए इन विच सेल, जो हमारा अलर्ट इरेक्शन लिमिट है वहां पर हम एन ए राइट कर सकते हैं, एन ए और एन ए, राइट। अभी हमें एवरेज तो निकाल लिया हमने, मिनिमम कैसे निकालेंगे, पूरे मंथ में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया था क्या मिनिमम काउंट आया वहां पर, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका इज इक्वल टू MIN, पहले इक्वल टू का साइन लगाया, फिर MIN लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, और फिर पूरा आप उसको सेलेक्ट कर दीजिए, जो पूरी रो है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको हमें सेलेक्ट कर देना है, इस रो को, राइट। ये हमने यहाँ कहाँ तक सेलेक्ट करना है, 31 डेट तक सेलेक्ट कर दिया पूरा, और एंटर कर, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कर दीजिए, तो मिनिमम काउंट आ गया। कितना मिनिमम काउंट था पूरे मंथ में, 12। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ 12 है, तो उसने ऑटोमेटिक ले लिया, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू मैक्स MAX ब्रैकेट, फिर फर्दर वही वर्क करना है, क्या करने का है हमको, सिलेक्ट कर दीजिए पूरा कॉलम, फर्स्ट डेट से लेकर के 31 तक, ओके। यू विल सेलेक्ट फ्रॉम सेल 1 टू सेल 31, देन क्लोज ब्रैकेट, देन एंटर, सो 39 काउंट इज देयर। तो 39 काउंट है तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, इसको देखते हैं, तो ये देखिए ये रहा 39 काउंट यहाँ पर, तो मिनिमम मैक्सिमम आ चुका है हमारा, राइट। तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले एक साथ भी पूरा प्रोसीड कर सकते हैं। ये जो स्मॉल प्लस साइन आया है, इसको ड्रैग कीजिए लेफ्ट टू राइट, डबल क्लिक करके आप, और इसको इधर ड्रैग कर दीजिए लेफ्ट टू राइट, सारे में ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब सपोज करो लास्ट सेल में देख रहे हैं हम कितना मिनिमम काउंट आ रहा है, 12, ठीक है, ये रहा 12। अब सपोज ये ऑटोमेटिक चेंज कर लेता है, सपोज यहाँ पर 12 के बदले कितना होता, अभी आप देखने वाले हैं, नीचे देखेंगे तो मैं यहाँ 8 कर दे रहा हूं, तो अभी आप इस पार्ट पर देखिएगा, अभी 12 काउंट है, तो कितना हो जाएगा एंटर करते ही, देखो 8 आ गया ना, वहां पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। अब यहाँ हमने 41 लिखा है मैक्सिमम काउंट जो है, अब सपोज यहाँ कहीं और अदर प्लेस पर हम 46 लिख दिया है, एंटर करते ही वो क्या नीचे भी 46 ले लेगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस पार्ट पर हमने अपने क्या किए हैं, फॉर्मूलेस पुटअप कर दिए हैं, इन दिस पार्ट, ठीक है। ये येलो से हमने हाईलाइट कर दिया है, इसको बोल्ड भी कर दीजिए पूरे को। तो इस तरह से करके आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर आपको अलर्ट और एक्शन लिमिट भी निकालना है तो वो भी आप यहां पर निकाल सकते हैं, लिख लेते हैं, टाइप कर लेते हैं, अलर्ट लिमिट और एक्शन लिमिट। तो अलर्ट लिमिट और एक्शन लिमिट निकालने के लिए आपको एक वर्क और करना पड़ता है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की रिक्वायरमेंट और रहती है। तो एक कॉलम, सॉरी एक रो ऐड कर लीजिए यहाँ पर, इस लोकेशन पर हम क्या करेंगे, इससे ऊपर ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको, देखो ऊपर सबसे ऊपर टैब पर मेरा कर्सर देख सकते हैं आप, इंसर्ट टैब पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर ये कॉलम एक रो बढ़ गया है, और इसमें आपको क्या करना है, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन STD मैंने शॉर्ट में लिखा, STDEV, राइट। तो ये तो NA ही रहने वाले हैं दोनों, तो इसको तो NA ही कर देते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। अब नाउ वी हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मे बी ऑल ऑफ यू नो, अदरवाइज आप जान लीजिए कैसे लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू साइन, देन STDEV, राइट, देन ब्रैकेट, देन सेलेक्ट ऑल द कॉलम, डेट 1 टू डेट 31, यहाँ से लेके सारा सेलेक्ट कर दीजिए इसको 31 डेट तक, कहाँ तक, 31 तक है ना, एवरेज को नहीं सिलेक्ट करना है। फिर ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई है हमारा, कि मतलब मिनिमम और मैक्सिमम काउंट में टोटल मंथ में क्या डिफरेंसेस रहे हैं एवरेज से, अगर हम कंपेयर करें तो ये आ गया है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन।
इसी को, ये स्मॉल प्लस साइन आया है, इसको ड्रैग कर दीजिए लेफ्ट टू राइट, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब अलर्ट लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है? अलर्ट लिमिट निकाला जाता है, मैं फॉर्मूला इधर टाइप कर देता हूं, लिख देता हूं। अलर्ट लिमिट का फॉर्मूला होता है एवरेज, AVG, एवरेज लिखा शॉर्ट है मैंने, प्लस का साइन लगाते हैं 3 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अलर्ट लिमिट में क्या करना है, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये एक्शन लिमिट में लगाएंगे 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन यहां करना है, और इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं नीचे। हियर व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्शन लिमिट में 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इनिशियल फेजेस में हमें ये रिक्वायरमेंट रहती है अलर्ट एक्शन निकालने की, ये ईयर वाइज भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर फर्दर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पर, इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज कितना आया था आपका, एवरेज पर क्लिक कर दीजिए, दिस इज एवरेज प्लस ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट 2 इंटू दिस साइन, स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्लिक कर दीजिए, खाली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये आपका अलर्ट लिमिट कैलकुलेट हो जाता है, राइट। और एक्शन लिमिट में क्या करना है, इज इक्वल टू एवरेज प्लस ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई साइन, स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्लिक कर दीजिए। अलर्ट लिमिट होती है एवरेज में 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, और एक्शन लिमिट में 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो ये अलर्ट और एक्शन लिमिट आ चुकी है इस डेटा के बेस पर, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, डेसिमल प्लेस हटा देते हैं, ठीक है, और ये ड्रैग लेफ्ट टू राइट कर देंगे, स्मॉल प्लस आएगा, इसको लेफ्ट टू राइट प्लस, ये सारे डेटा का आपका अलर्ट और एक्शन लिमिट आ गया। जितना डिफरेंस रहेगा ना आपका जो उतना ही ज़्यादा अलर्ट एक्शन आने वाला है। सपोज इसमें मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, कभी 4 भी आ गया था काउंट, है ना, कभी 46 भी आ गया था, तो देखो ये चेंज होता जा रहा है, नीचे 31 भी आया था, तो ये चेंज होता चला जाएगा। तो जो अलर्ट एक्शन लिमिट रहती है वो आपके डेटा पर डिपेंड करती है, ऐसे थियोरेटिकली डिफाइंड नहीं है, ये आपके डेटा पर डिपेंड करती है कि अलर्ट एक्शन लिमिट हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस डेटा, वी हैव मेड द ट्रेंड, हमने ट्रेंड तो बना लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाना है अब आपको, ये तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए आप अपना पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए जिसका आपको ग्राफ बनाना है। ये पूरा डेटा आप लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन सेलेक्ट कर लीजिए। कहाँ तक सेलेक्ट करना है, डेट तक, नॉट एवरेज, अप टू हियर। डेटा सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट में आना है, दिस इज द इंसर्ट, क्लिक ऑन द इंसर्ट। इंसर्ट में आने के बाद नाउ यू विल गो इन द चार्ट्स, क्लिक हियर, ओके, रिकमेंडेड चार्ट्स, क्लिक हियर, देन all charts, go on all charts, then line chart, okay। लाइन चार्ट पर आने के बाद में हमने लाइन चार्ट सेलेक्ट किया, राइट। और जैसे ही हम इधर ओके करते हैं, लाइन चार्ट में भी अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, देखो डॉट्स यहाँ नहीं दिखाई दे रहे, अगर हम ये पॉइंट्स करेंगे, ये लेंगे तो इसमें डॉट्स भी आएंगे अलग अलग, राइट। तो ये सेलेक्ट करके आप ओके क्लिक करें इसको, तो ग्राफ आपका बन जाएगा, ऑटोमेटिक ग्राफ बन जाता है। इसको जिस पोजीशन पर भी आपको रखना है ग्राफ को, उसको शिफ्ट कर सकते हैं। हम जैसे लो बेस पर आ गए हैं और यहाँ पर हमने साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं आप, जस्ट लाइक दिस वन, वी हैव ड्रॉन दिस ग्राफ, राइट।
So our graph is ready. We can add the chart title here. Click on this chart title and mention the chart title. Suppose trend analysis of manufacturing area. You can write down like this. Also, you can add the axis titles. To add the chart title, what you have to do, go to this chart design. Okay, here in this chart design, then in chart design add in the first part है ना, चार्ट पहले चार्ट डिजाइन में जाएंगे, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है एड चार्ट एलिमेंट दिखाई दे रहा होगा आपको. क्लिक हियर, देन यू कैन ऐड एक्सिस बाय हियर, यू कैन ऐड एक्सिस टाइटल. तो हमें एक्सिस टाइटल ऐड करना है खाली. ओके, तो एक्सिस टाइटल पर क्लिक कीजिएगा आप. जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हॉरिजेंटल एक्सिस में आपको शो हो जाएगा. जैसे हॉरिजेंटल पर क्लिक करें, यहाँ दिखाई दे रहा है एक्सिस टाइटल आ गया है यहाँ पर, राइट. प्राइमरी हॉरिजेंटल आ गया, तो एक्सिस टाइटल यहाँ आ गया. ऐसे ही हमने क्या किया, चार्ट डिजाइन में आके एक्सिस टाइटल पर आकर के प्राइमरी वर्टिकल पर क्लिक कर दिया, तो दोनों चार्ट टाइटल हमारे पास आ जाते हैं. तो यहाँ एक्सिस टाइटल पर क्लिक करके आप जो भी एक्सिस टाइटल आपको लिखना है वो आप राइट अप कर सकते हैं. जैसे हमारा वाई एक्सिस पर हम क्या शो कर रहे हैं, काउंट CFU पर 4 आवर. ठीक है, इज इट ओके. CFU पर 4 आवर. और एक्स एक्सिस पर क्या शो कर रहे हैं, डेट. तो यहाँ पर आप यू कैन राइट डाउन हियर डेट, DATE, राइट डाउन जस्ट लाइक दिस वन. तो इस तरह से करके हमारा जो चार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है. आप अपने चार्ट को सॉलिड लाइन और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर इस पार्ट में आकर के. व्हाट यू कैन डू, क्लिक हियर, देन इन द राइट फॉर्मेट एक्सिस यू कैन सेलेक्ट दिस सॉलिड लाइन. ओके, ये जो दिखाई दे रहा है ना, फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट दिस सॉलिड लाइन. जैसे आप सॉलिड लाइन पर क्लिक करते हैं तो ये आपका सॉलिड लाइन ग्राफ हो जाता है, जो वाई एक्सिस भी है. तो इस तरह से करके हमारा ग्राफ रेडी हो जाता है एक्सेल पर. आप इसका कलर प्रिंट ले सकते हैं और कलर प्रिंट लेकर के अपने डेटा के साथ आप अटैच कर सकते हैं. अलर्ट एक्शन लिमिट भी हमने कैलकुलेट कर दिया है. ठीक है, ये जो हाईलाइट किया है हमने येलो से, इसको थोड़ा कलर चेंज कर सकते हैं. अलर्ट एक्शन लिमिट, दिस इज योर अलर्ट एक्शन लिमिट. फर्स्ट वन वाज योर एवरेज. ठीक है, तो ये एवरेज था हमारा. कितना काउंट आया था पूरे मंथ का, एवरेज क्या काउंट रहा, मिनिमम मैक्सिमम क्या रहा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहा, और अलर्ट एक्शन लिमिट क्या निकला. ठीक है, मंथली बेसिस पर आप ईयरली बेसिस का अलर्ट एक्शन लिमिट बना सकते हैं और उसको आप अपनी एसओपी में ईयरली बेसिस पर ऐड कर सकते हैं. ओके, व्हाट यू कैन डू ऑन मंथली बेसिस, प्रिपेयर द ट्रेंड and calculate the alert action limit, and from monthly basis you can prepare the graph for yearly basis, and on the basis of yearly trend analysis you can change the alert action limit on the basis of current data and add these limits to your SOP and formats. So this is the way how you can draw the graph in Excel, how you can calculate the alert and action limit, and on monthly basis how you can make the graph. इसी तरह से आप चाहे आप एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग का ग्राफ बनाना हो आपको, चाहे आपको वाटर का ग्राफ बनाना हो, आप इजीली ग्राफ बना सकते हैं. ओके, तो थैंक यू. आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. प्रैक्टिस दिस वन, ड्रॉ द ग्राफ बाय योरसेल्फ एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द ग्राफ ऑन द एक्सेल. ओके, दिस इज द होल ग्राफ. Okay, thank you, keep watching.